Hello, good morning, students. Welcome to the English class, the sixth lesson of the book Hornbill. The lesson is the Browning version. It is written by Terence Rattigan. Notice these expressions in the text, infer their meanings from the context. Remove. Here, remove has been used for result. Slackers, slow learners. Muck, muck nonsense, bakwas, rubbish. Captain, stay. Got carried away, become to become emotional. Cut, slip. Sadist. Sadists are the persons who enjoy in the sufferings of the others. Shriveled up, to compress. Okay, now let us start the lesson. This is an excerpt from the Browning version. This lesson has been taken from the big play, the Browning version. Okay, the scene is set in a school. You know very well that this is a play, and the play has been set in a school. It means the scene of the play is of a school. Frank is young and Crocker Harris middle aged. There are two teachers. Main three characters are there: Frank, Crocker Harris, and Taplow. Frank and Crocker Harris are teachers. Frank is a science teacher and he is a young teacher. Crocker Harris is a middle aged teacher. He is a Latin teacher. Both are masters. Both of them are teachers. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. Taplow जो है, he is 16 years old and he has come to school to do extra work because Mr. Crocker Harris has called him to the school, but the letter has not yet arrived. The letter has been used for the teacher, Mr. Crocker Harris. This is a pronoun. This is opposite of former. It means it has been used for Crocker Harris, the teacher. Taplow, the student, is waiting for the teacher at his home in the school, but the teacher is not at home, so the student is waiting for the teacher. And Frank finds Taplow waiting. Frank, who is a science teacher, sees that Taplow, a student, is waiting for his teacher. Frank, do I know you? जैसे ही फ्रैंक जो साइंस टीचर है अपने रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि टेप्लो जो है अपने टीचर का वेट कर रहा है, तो उससे पूछता है, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? टेप्लो, नो सर, नहीं सर, आप मेरे को नहीं जानते, आप हमें नहीं पढ़ाते। फ्रैंक, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? फ्रैंक पूछता है टेप्लो। टेप्लो टेप्लो उत्तर देता है, आंसर्स दैट इज नेम इज़ टेप्लो। फ्रैंक, टेप्लो, नो, यस, हाँ हाँ, टेप्लो नाम के स्टूडेंट को मैं नहीं जानता, नो, आई डोंट नो सच ए स्टूडेंट नेम्ड टेप्लो इन माई क्लास. You are not a scientist, I gather. I recollect. Gather means recollect. As far as I am concerned, as far as I know, you are not a student of science stream. Taplow, no sir, I am still in the lower fifth. तो फ्रैंक क्या कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, वो साइंस टीचर है, वो कहता है कि साइंस स्ट्रीम में आप टेप्लो नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है। तो टेप्लो कहता है, हाँ सर, मैं अभी लोअर फिफ्थ क्लास में हूँ। आई कॉन्ट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, जब तक कि मैं नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट क्लास में नहीं हो जाता तब तक मैं स्पेशलाइजेशन चूज़ नहीं कर सकता। दैट इज़ टू से, ऐसा ही कहना चाहिए, इफ़ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट, अगर मुझे मेरा रिमूव, यहाँ रिजल्ट की बात है, पास हो जाता है, अगर वो पास हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में जा सकता है और साइंस ले सकता है। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गोट योर रिमूव? फ्रैंक जो साइंस टीचर है वो टेप्लो से पूछता है कि क्या आपको अभी तक नहीं पता चला है कि आपका रिमूव मिल गया है नहीं, मतलब आप पास हो गए या नहीं, आपका रिजल्ट
के बारे में आपको नहीं पता है क्या अभी तक? टेप्लो, नो सर, नहीं सर, अभी मेरे को नहीं पता चला है कि मैं पास हुआ हूँ या नहीं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। क्या कहता है टेप्लो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो दूसरे टीचर्स की तरह रिजल्ट जो है वो पहले नहीं बताते हैं। वो एक जो फिक्स डेट होती है, जो लास्ट डे होता है टर्म का, उस दिन ही रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और आप जानते हैं ये हेडमास्टर के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ एक टीचर्स, सम ऑफ द टीचर्स आर इन हैबिट of telling the results to the students before it is officially announced. But Taplow says Mr. Crocker Harris is not such a teacher. ऐसा टीचर नहीं है जो रिजल्ट पहले से बता दे। फ्रैंक, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? फ्रैंक पूछता है कि वो क्यों नहीं बताता रिजल्ट। टेप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। टेप्लो कहता है कि आप जानते हैं सर वो किस तरह का टीचर है, कैसा टीचर है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। फ्रैंक, आई बिलीव देर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक रूल है, एक नियम है, और उस नियम के मुताबिक रिजल्ट जो है हेडमास्टर के द्वारा, जो टर्म का जो एकेडमिक ईयर होता है उसका लास्ट डे को हेडमास्टर के द्वारा डिक्लेयर किया जाना चाहिए। Taplow, yes, but who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris? इस पर टेप्लो कमेंट करता है कि यस सर, मैं जानता हूँ ऐसा नियम है, लेकिन इस नियम की तरफ ध्यान कौन देता है, इसको कौन फॉलो करता है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा। मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है, जो टीचर हैं, वो इस चीज़ को, इस नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी टीचर तो इसको फॉलो नहीं करते। बाकी टीचर पहले से ही रिजल्ट बता देते हैं। फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट इज़ नो क्राइटेरिया। आई डोंट, मैं नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। आई एडमिट, मैं मानता हूँ, बट देर इज़ नो क्राइटेरिया, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है, ये कोई पैरामीटर नहीं है। कहने का मतलब, फ्रैंक इज़ इन फेवर ऑफ टेलिंग द रिजल्ट्स बिफोर इट इज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड। सो यू हैव गोट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? अब फ्रैंक कहता है कि टेप्लो, क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कल तक अपना जो फेट है, जो लक है, भाग्य है, उसके बारे में उसका वेट करना पड़ेगा, यानी कि अपने रिजल्ट का तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि आपका गुड लक है या बैड लक है, कि आप पास होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसी ही बात है ना? टेप्लो, यस सर। टेप्लो जो है टीचर की हाँ में हाँ भरता है, यस ऐसा ही है सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? अब फ्रैंक साइंस टीचर टेप्लो से पूछता है कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपका जो आंसर है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो फेवरेबल है, यानी कि आप पास हो जाते हैं, आपको रिमूव मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे? टेप्लो, साइंस सर ऑफ कोर्स। टेप्लो कहता है, ओ एक्साइटेड होकर कह रहा है कि सर ऑफ कोर्स, देयर इज़ नो डाउट, आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर साइंस, मैं साइंस लूँगा सर। फ्रैंक, सैडली, ये सुनकर फ्रैंक जो साइंस टीचर है उदास हो जाता है। यस, हाँ, वी गेट ऑल द स्लैकर्स, स्लैकर्स स्लो लर्नर होते हैं। फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ सारे जो स्लो लर्नर हैं, जो वीक स्टूडेंट है, जो पुअर स्टूडेंट है, एकेडमिकली जो पुअर होते हैं, वो साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट कर लेते हैं, और हमें उनको झेलना पड़ता है। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। अब टेप्लो क्या कहता है कि ये बात नहीं है सर, मैं साइंस स्ट्रीम में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा जो है रुचि है। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट, नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। अब फ्रैंक साइंस टीचर जो है वो कमेंट करता है कि क्या आप साइंस में इंटरेस्टेड है? मैं तो साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नॉट एट लीस्ट, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता। इन द साइंस आई हैव टू टीच, जो साइंस मुझे पढ़ानी पड़ती है, ये इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट द टीचर who teaches science is not interested at all in his own subject. What is going to be the fate of the students if a teacher is not interested in his own subject? बड़े दुख की बात है ये। टेप्लो, वेल एनीवे सर, इट इज़ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। टेप्लो जो है वो कहता है, तो भी सर, इट इज़ ए गुड डील मोर एक्साइटिंग,
देन दिस मक, ये जो साइंस है, इट साइंस के लिए यूज़ हुआ है, ये ज़्यादा एक्साइटिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग है। इस मक, मक रबिश, कूड़ा, बकवास, नॉनसेंस, ये जो मैं मक लिए हुई, जो ये बकवास लिए हुई, ये जो कूड़ा मेरे हाथ में है, इंडिकेटिंग हिज बुक, अपनी किताब की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इससे तो साइंस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एक्साइटिंग है। फ्रैंक, व्हाट इज़ दिस मक, ये मक क्या है आपके पास, क्या बकवास है, क्या कूड़ा लिए हुए हो तुम। टेप्लो, एसलेस, सर द एगमेमनन। टेप्लो बताता है कि एसलेस एक राइटर का नाम है, एसलेस द्वारा लिखित एगमेमनन जो प्ले है वो है ये बुक। फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज़ दैट द एगमेमनन इज़ मक। तो फ्रैंक जो साइंस टीचर है वो कमेंट करता है, तो कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एगमेमनन जो प्ले है, जो ट्रेजेडी है, दुखांत नाटक है, ये बकवास है, ये कूड़ा है तुम्हारे विचार से। टेप्लो, वेल नो सर, अरे नहीं सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक, मैं ये नहीं कहता कि ये प्ले जो है ये बकवास है, ये नॉनसेंस है, ये रबिश है। एग्जैक्टली, आई सपोज इन ए वे इट इज़ रेदर ए गुड प्लॉट, रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। नहीं, एग्जैक्टली आई सपोज इन ए वे, जिस मैं एक अलग तरीके से सोच रहा हूँ, यानी कि इसका जो प्लॉट है, यानी कि बहुत अच्छा नाटक है ये, इसका जो प्लॉट है, इसका जो नरेटिव है, जो घटना है वो वास्तव में अच्छी है। एक वाइफ जो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, ऑल दैट, यानी कि प्लॉट से रिलेटेड बात करता है वो। आई ओनली मेड द वे इट इज़ टॉट टू अस, मैं केवल उस तरीके की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से हमारे को पढ़ाई जाती है। ये जो प्ले हमें पढ़ाया जाता है वो तरीका जो है बकवास है, नॉनसेंस है। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्टंग टुगेदर, हमें कैसे पढ़ाया जाता है, जो ग्रीक वर्ड्स हैं इस प्ले में से वर्ड उठा के दे दिए जाते हैं लगातार। स्टंग टुगेदर का मतलब एक साथ काफ़ी वर्ड लिखवाए जाते हैं हमें। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, यदि आप उन वर्ड्स को गलत लिख देते हैं, उन शब्दों को गलत लिख देते हैं, तो आपको 50 लाइन्स लिखनी होगी एज ए पनिशमेंट और ड्रिल के लिए, प्रैक्टिस के लिए। फ्रैंक, यू साउंड ए लिटिल बिटर टेप्लो। फ्रैंक साइंस टीचर कहता है कि आप में कड़वाहट आ गई है, आप थोड़े, आपका व्यवहार जो है वो थोड़ा रूखा हो गया है। टेप्लो, आई एम रेदर सर, वो कहता है कि हाँ सर, मेरा व्यवहार रूखा है, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रैंक, कैप्टन है, आपको यहाँ स्कूल में रखा गया इसलिए। टेप्लो, नो सर, नहीं सर, एक्स्ट्रा वर्क, यहाँ स्कूल में रखा गया इसलिए नहीं, बल्कि मेरे को एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। फ्रैंक साइंस टीचर आश्चर्य के साथ पूछता है कि टर्म का लास्ट डे है और लास्ट डे को आपसे एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा है, क्या बात है भाई। टेप्लो, यस सर, हाँ सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, और इस समय मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, आप जानते हैं सर, अब टीचर की बात कर रहा है कि he would have enough to do anyway himself। यहाँ मिस्टर क्रोकर हैरिस की बात की जा रही है। टेप्लो कहता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस के पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा काम था, होना चाहिए था, क्योंकि ये सोचते हो कि कल वो हमेशा हमेशा के लिए, फॉर गुड, हमेशा हमेशा के लिए होता है, फॉर एवर होता है। वो जा रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, और फिर भी मेरे को यहाँ बुलाया है काम, एक्स्ट्रा काम करने के लिए। बट ओ नो, लेकिन नहीं, उसने मेरे को भी नहीं बख्शा, मेरे को यहाँ बुला लिया एक्स्ट्रा काम करने के लिए। आई मिस डे लास्ट वीक, क्या हुआ पिछले सप्ताह मैं एक दिन स्कूल नहीं आने पाया, व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, इसलिए मेरे को आज यहाँ बुलाया है। एंड लुक एट द वेदर, और सर मौसम देखिए, कितना सुहावना मौसम है। इट इज़ प्लेजेंट वेदर टुडे, आज मौसम बड़ा सुहावना है, और मैं गोल्फ खेल रहा होता, लेकिन टीचर ने मेरे को यहाँ एक्स्ट्रा काम करने के लिए बुला लिया है। फ्रैंक, बैड लक। फ्रैंक कॉल्स इट ए बैड लक। फ्रैंक साइंस टीचर, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया है और उसको उसका बैड लक कहता है, उसको डिमोरलाइज कर रहा है, उसको डिस्करेज कर रहा है। स्टिल देर इज़ वन कम्फर्ट, लेकिन फ्रैंक कहता है कि फिर भी इसका एक फ़ायदा है। कंफर्ट आराम होता है वैसे, लेकिन यहाँ इसका प्लस पॉइंट है, आप यहाँ पर स्कूल में आए हैं एक्स्ट्रा
क्लास लेने के लिए आए हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस के कहने पर, तो इसका आपको एक फ़ायदा मिलेगा। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। आप जो हैं एक अच्छे लड़के हैं, टीचर के कहने पर आप एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आ गए, इसलिए टीचर आपका टीचर जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो कल जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसमें आपको पास कर देगा। इससे ये आपको फ़ायदा होने वाला है। टेप्लो कहता है वेल आई एम नॉट सो श्योर। नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर, ऑल राइट। इस प्रकार की बात जो सामान्य टीचर हैं उन पे लागू होती है। सामान्य टीचर जो हैं ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। दे जस्ट वॉन्ट डेयर नॉट टू गिव ए चैप ए रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। जो सामान्य टीचर है, ऑर्डिनरी टीचर हैं, आमतौर पे जो टीचर हैं वो एक बच्चे को, जो बच्चा उनके कहने पर एक्स्ट्रा क्लास लेता है, उनको, ऐसे बच्चों को वो रिमूव यानी कि फेल करने की हिम्मत नहीं करते। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉकर। लेकिन इस प्रकार के रूल जो हैं, इस प्रकार के नियम जो हैं क्रॉकर पर अप्लाई नहीं होते, क्रॉकर पर लागू नहीं होते, क्रॉक पर लागू नहीं होते। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, थोड़ा सा अपने टीचर को मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहने की बजाय क्रॉक कह जाता है। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट, आउटराइट डायरेक्ट, सीधा मैंने कल अपने टीचर से पूछ लिया था, इफ़ ही हैड गिवन मी ए रिमूव, क्या उन्होंने मेरे को पास किया। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और आप जानते हैं कि उन्होंने मेरे से क्या उत्तर दिया। फ्रैंक नो व्हाट, नहीं मैं नहीं जानता, बताइए क्या कहा आपके टीचर ने। टेप्लो, अब टेप्लो जो है बताता है कि क्या कहा। जब टेप्लो ने अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस से ये पूछा कि क्या सर मैं पास हो गया हूँ, तो टेप्लो अपने टीचर की वॉइस की इमिटेट करते हुए, कॉपी करते हुए, इन्हें वेरी जेंटल रेदर थ्रोटी वॉइस, थोड़ी भारी आवाज़ में और जेंटल आवाज़ में बोलता है, माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। माय डियर टेप्लो, मैंने आपको बिल्कुल उतने ही मार्क्स दिए हैं जितना आप डिजर्व करते थे, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, ना बिल्कुल कम और ना ही बिल्कुल ज़्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, आप जानते हैं सर उसने मेरे नंबर कम दिए होंगे, रेदर देन अप, ज़्यादा देने की बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए टीचर ने क्या किया होगा, मेरे नंबर कम दे दिए होंगे, ज़्यादा नहीं दिए होंगे। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मेरे कहने का मतलब है कि ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं वो हार्डली ह्यूमन हैं, यानी कि शायद उसमें मानवता नाम की, मानव वाले गुण नहीं हैं। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, अचानक वो चुप हो जाता है। सॉरी सर, आई हैव गॉन टू फार, सॉरी सर मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। फ्रैंक कहता है मस्ट टू फार, काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हो तुम, बहुत कुछ कह दिया तुमने टीचर के बारे में। टेप्लो कहता है सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे। टेप्लो जो है वो अपनी गलती मानता है, सॉरी फील करता है और कहता है कि आई गॉट कैरिड अवे। गॉट कैरिड अवे मीन होता है टू बिकम इमोशनल, वो इमोशनल हो गया था, भावनाओं में बह गया था। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन will be discussed tomorrow. This is the end of this video.